All right, so the black fungus now is increasingly becoming a huge source of worry for a lot of patients, though it's a very specific subset, people with high diabetes and with the high amount of steroids being given. They are the ones those who are usually catching this fungus even after they fight COVID-19. Alarms have been raised by few states. They have declared it epidemic. Delhi today has also started 3 specific dedicated black fungus treatment centers in 3 government hospitals. Take a look at this report. Satyendra Jain, Health Minister of Delhi, will be joining us after this. The second wave has brought out an even more dangerous side to the coronavirus. An infection that's on the prowl across the country. One that is even more deadly and is spreading fast. Incidence of mucormycosis or the black fungus is rising dangerously among COVID patients. नॉर्मल बुखार आया था तो लोकल डॉक्टर से दवाई ली तो एक तरफ से जो लेफ्ट साइड है उसमें सूजन आने लगी और पेन होने लगा बहुत ज़्यादा। फिर हमने न्यूरो सर्जन को दिखाया बुलंदशहर में, राजीव अग्रवाल। उन्होंने MRI वगैरह कराया। फिर उन्होंने वहाँ भेजा ENT डॉक्टर को। ENT वालों ने चेक किया कि इनके ब्लैक होने लगे। जो बुखार हाथ में कम नहीं हो रहा था इनका ना, तो उसके बाद लास्ट फ्राइडे इनको पेन होना शुरू हुआ। तो फिर पेन होने के बाद हमें पता चला कि ब्लैक फंगस के वो है सिम्टम है। उनका MRI और एंडोस्कोपी कराई गई तो उसके पता चला कि इनको ब्लैक फंगस है। The nature of the disease itself is such that in most patients it requires a surgery to treat it. म्यूकोरमाइकोसिस का मैनेजमेंट बेसिकली 2 हेड में होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। हमारे यहाँ जो दाखिल होते हैं पेशेंट वो सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए दाखिल होते हैं। तो हमारे यहाँ जो सर्जरीज है राउंड द क्लॉक चलती है। ENT डिपार्टमेंट कर रहा है, डेंटल डिपार्टमेंट कर रहा है और प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट कर रहा है। Health experts have said the fungus develops as a consequence of steroids that reduce immunity and increase blood sugar levels in critical coronavirus cases. It hits chronic diabetics the most. Indiscriminate or excessive use of steroids in patients, even though they may not be requiring, and this use of steroids precipitates an increased blood sugar, increased level of blood sugar, fluctuation of blood sugar, and even leading to diabetic ketoacidosis. And diabetes is one of the leading reasons why this fungus starts multiplying so rapidly. The crisis is so grave, Rajasthan and Telangana have declared the infection an epidemic. The national capital Delhi has set up 3 dedicated centers just for treatment of black fungus. And the center has asked all states to declare the black fungus a notified disease. In Tamil Nadu, a 10-member team has been formed to monitor the raging disease. So we have created a 10-member committee at the level of DME, Director of Medical Education, with medical experts to go through it and then give us a clear picture of the status. It is a rare disease, but one that has been known to medicine for decades. Now, with a sudden steep rise in black fungus cases, hospitals are scrambling to find medication, and the government has also stepped in. However, doctors say that prevention by controlling sugar levels and not using too many steroids, plus early detection, is the only way forward because this is a very fast-spreading disease. But people don't need to panic. They just need to ensure that their sugar levels remain in control. In New Delhi, with cameraman Vakar, this is Anisha Mathur for India Today. Let me straight away go across to Mr. Satyendra Jain, Health Minister of Delhi. जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, दिल्ली में केसेस काफ़ी कम अब दिखाई पड़ रहे हैं। 3000 से थोड़े ऊपर केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 5.5% के आसपास है। क्या अब दिल्ली के जो पीक की बात हो रही थी, दिल्ली पे जो सबसे ज़्यादा परेशानी का जो समय था वो अब टल गया है सेकेंड वेव से? हाँ, ये बिल्कुल है, जो पीक तो बिल्कुल जा चुका है। और आज जो केसेज आए हैं वो 3231 32 से 31 केसेज आए हैं। पॉजिटिविटी 5.5% है, जो कि बढ़कर एक टाइम पर 36% भी थी। तो पॉजिटिविटी कई गुना कम हुई है। नंबर ऑफ केसेज जो 28,000 पहुंच गए थे, आज वो 3,000 के आसपास चल रहे हैं।
तो जो पीक तो काफ़ी पीछे रह गया है और अभी लग रहा है कि बहुत जल्दी हालात काफ़ी काबू में होंगे, सुधार पे होंगे। क्योंकि अब स्थिति थोड़ी समझी हुई लग रही है, बेड्स भी थोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, पर वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड्स की अभी भी थोड़ी मारामारी है। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड की अब ऐसा नहीं है कि बेड अवेलेबल नहीं है। मेरे सामने डाटा है कि दिल्ली में कुल 6,872 बेड्स आईसीयू के हैं, जिसमें से 1628 बेड अभी भी अवेलेबल हैं। हाँ, ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल में दिक्कत है, पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के और कई सारे हॉस्पिटल्स में अब आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं और स्थिति डेली सुधर रही है। क्योंकि ऐसा था कि काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में, मान लो 200 पेशेंट हैं, आईसीयू बेड 50 हैं, तो आईसीयू से जो भी लोगों को छुट्टी मिलती है तो कुछ ना कुछ पेशेंट पीछे जो 150 थे उसमें लाइन में लगे होते हैं, जिनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। पर हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और 1600 बेड एक टाइम था, आज से 10 दिन पहले एक भी बेड दिल्ली में आईसीयू बेड नहीं था अवेलेबल किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी में, प्राइवेट में, जो कि आज 1600 से ऊपर अवेलेबल है। जिस तरह से हमने देखा था कि पहली वेव के बाद दिल्ली सरकार के भी इंतजामों में कुछ कमी आई थी क्योंकि केसेस कम हो गए थे। अब आप ऑलरेडी तीसरी वेव के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या जो दिल्ली में अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसे जस का तस रखा जाएगा, चाहे केसेस कितने भी कम हो जाएं? देखिएगा, अभी ये कहना कि भाई केसेस कम हो गए तो हमें अपने गार्ड्स को लोअर कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी तो बिल्कुल चिंता का विषय ये है कि सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आएगी, तो तैयारी तो थर्ड वेव के हिसाब से करके रखनी पड़ेगी हमारे को। लॉकडाउन को लेकर भी बहुत बातचीत है। दिल्ली पिछले 5 हफ्तों से लगातार लॉकडाउन कर्फ्यू के अंदर इस समय है, तो अब जब केसेस कम आ रहे हैं, 5.5% दर है, तो क्या लॉकडाउन पर सरकार की कुछ रीथिंक चल रही है? दोबारा सोच रहे हैं आप इस पे, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लोगों को इस पे लेकर बहुत उत्सुकता है जानकारी लेने के लिए। मुझे लगता है अभी थोड़े दिन वेट करने की आवश्यकता है कि एकदम से हमारे को ऐसा नहीं है कि केसेस, देखो एक हफ्ता पहले ये 14-15% था, एक हफ्ते में अगर 5% पे आया है, तो ऐसा नहीं कि हम एकदम से सब कुछ ओपन अप कर दें। मुझे लगता है थोड़े दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। और देखिएगा, जहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ था आप उसको देखिए ना, दिल्ली में लगभग 200-300 केसेस डेली आ रहे थे, 200-300 से बढ़ते हुए 28,000 पर डे पे पहुंचा था। तो मुझे लगता है अभी भी 3,000 केसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये तो इसलिए कम लग रहे हैं कि 28,000 तक पहुँच गया था। अदरवाइज जब 200-300 से बढ़ के 1000 हुआ था तब भी लग रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा है, और 3000 तो काफ़ी ज़्यादा में ही आएगा, कम में नहीं आएगा। क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी जा सकती है, या फिर ये मान के चलें कि कम से कम अभी हफ्ते भर तक और इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगे? अभी हफ्ते भर तक हैं, मंडे तक तो बिल्कुल हैं रेस्ट्रिक्शन सारे, संडे तक बताएंगे आपको क्या किया जा सकता है। ब्लैक फंगस को लेकर कुछ राज्यों ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। कई राज्यों में इसको लेकर गहन चिंतन भी चल रही है। दिल्ली के अंदर भी आपने 3 हॉस्पिटल्स को ब्लैक फंगस के स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। कितनी दिल्ली के अंदर कितनी विकट स्थिति है और उसके लिए सरकार अभी क्या क्या कदम उठा रही है? दिल्ली में देखो, कल हमने सारे हॉस्पिटल से काउंट लिया था तो 197 पेशेंट्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स में थे ब्लैक फंगस के। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर इससे बच लें तो सबसे अच्छी बात है, उसके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक फंगस का सबसे प्राइम रीज़न है कि ब्लड शुगर का बढ़ना। जिन लोगों को जो पहले से डायबिटिक हैं या स्टीरॉयड्स के लेने से जिनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, दे आर सस्पेक्टेबल फॉर दिस ब्लैक फंगस। हो क्या रहा है कि कोरोना की जब ट्रीटमेंट हो रही है तो उस ट्रीटमेंट में सबको, काफ़ी सारे लोगों को स्टीरॉयड दिए जाते हैं, खासतौर से जो लोग आईसीयू में हैं या हॉस्पिटल केयर के अंदर है, उनको काफ़ी लंबे समय तक स्टीरॉयड दिए जाते हैं। स्टीरॉयड से 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपकी इम्यूनिटी एकदम खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो शरीर के अंदर किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उसको बढ़ने का एकदम से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर स्टीरॉयड चल रहे हैं तो शुगर लेवल को इंसुलिन लेनी पड़े तो भी कोई दिक्कत है, टेम्परेरी होता है। कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो कहते नहीं हम इंसुलिन ले लेंगे, गोली ले लेंगे, क्योंकि मेरी पहले गोली चल रही थी। हो सकता है गोली से कंट्रोल में ना आए,
आपको हर हालात में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना है, पहली चीज़। दूसरी बात कि अगर स्टेरॉइड आपने लिए हैं और घर पे छुट्टी मिल गई, ऐसे केस आ रहे हैं कि घर पे चले जाते हैं, 15 दिन के बाद वापस हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ये मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी नहीं है, आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर स्टेरॉइड काफ़ी लंबे तक समय तक लिए हैं, जो डस्ट है, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट पे डस्ट होती है, उससे एकदम से आपको इसी इन्फेक्शन के मिलने के चांस होते हैं। जो गली हुई सड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अपने पास बिल्कुल ना रखें। और मुझे लगता है आप ये मान के चलिए घर पे तो आ गए हैं, आपका मतलब ठीक नहीं हुआ है, आप ये बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। कई लोगों का स्टेरॉइड घर पर भी चल रहे होते हैं, तो उनको केयर करनी है। आप ये मान के चलिए कि अस्पताल में ICU में है अभी भी आप। और जो लोगों की स्टेरॉइड बंद हो जाते हैं, स्टेरॉइड बंद होने के बाद भी कम से कम 7 दिन तक आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें, अपना शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, डॉक्टर की सलाह से जैसे भी करना हो। बहुत सारे लोगों को रेजिस्टेंस है, कहते नहीं कि हम इंसुलिन नहीं लेंगे। अरे भाई टेम्परेरी है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता लेनी पड़ जाए तो ले लीजिएगा, दोबारा से आप गोलियों पे आ जाएंगे। और दूसरा, आपको हर चीज़ से बचाव करके रखना है, ज़्यादा लोगों से ना मिलें। ऐसे ये तो सिर्फ ब्लैक फंगस की बात हो रही है, इसके बारे में आपने बता दिया। और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं। अगर किसी दूसरे इंसान से आपको कोई भी इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी नहीं है तो आप उसको नहीं झेल पाएंगे, तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लाज्मा थेरेपी को, जिसको दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे एंडोर्स किया था, आपने उसके लिए प्लाज्मा बैंक भी बनाया था, उसको ICMR ने प्रोटोकॉल से हटा दिया है। आपको खुद को, जब आप बीमार थे तो आपको प्लाज्मा दिया गया था, इससे क्या दिल्ली में कोई कंफ्यूजन है? क्या आपने अब बिल्कुल प्लाज्मा थेरेपी को दिल्ली अस्पतालों ने बंद कर दिया है, उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है जैन साहब? नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है, प्लाज्मा बैंक भी चल रहा है। ये देखो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है। अगर डॉक्टर चाहेंगे तो जरूर जिस पेशेंट को लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी तक कोरोना की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। सारी की सारी जो भी इलाज किए जा रहे हैं वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। तो जो हमारा प्लाज्मा थेरेपी है वो भी सेम है। तो अगर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर चाहेंगे तो करेंगे। तो प्लाज्मा बैंक जो दिल्ली सरकार ने शुरू करा था वो चलता रहेगा? अभी डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। मैं आखिरी में आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, बच्चों को लेकर बहुत चिंता जताई गई है। आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट भी कर दिया था सिंगापुर को लेकर, जिसके बाद बहुत बड़ा हमला भी हुआ सरकार की तरफ से आपके ऊपर। सिंगापुर की सरकार ने भी उसकी बहुत आलोचना करी। बच्चों को लेकर आप लोगों की अभी क्या तैयारी चल रही है थर्ड वेव को लेकर? और दूसरी बात, जो आपने कहा था कि सिंगापुर का कोई स्ट्रेन है, क्या अभी तक वो ढूंढ पाए हैं आप? देखिएगा, हमने केंद्र सरकार को आगाह किया था और पहले भी कई बार आगाह किया इस तरह की चीज़ों के लिए। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले दिल्ली सरकार ने आगाह किया था कि विदेश से आने वाली सारी फ्लाइटें बंद कर दो। तब भी बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था कि भाई दिल्ली सरकार क्यों कह रही है। 1 महीने बाद बंद किया था। तो मुझे लगता है आगाह करने में कोई बुराई नहीं है। और आप खुद ही सोशल मीडिया पर देखेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में देखेंगे, इवन कई मीडिया चैनल्स ने भी दिखाया था कि सिंगापुर में भी, और उन्होंने खुद कहा है कि भाई बच्चों के लिए जो नया वायरस है खतरनाक है। और जहाँ तक सिंगापुर ने रिफ्यूट किया वो तो ये कहा है कि भाई ये सिंगापुर से नहीं, दिल्ली से या इंडिया से आया है। तो इंडिया से आया है तो इंडियन गवर्नमेंट को उसको रिफ्यूट करना चाहिए था कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को क्यों कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है उस बहस में ना पढ़ के, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों के अंदर जो भी एक्सपर्ट है सब कह रहे हैं कि भाई जो थर्ड वेव आएगी, जो भी नई वेव आने वाली है, उसके अंदर बच्चों के ऊपर ज़्यादा फैलेगी। तो मुझे लगता है हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और सब मिलकर करनी चाहिए, और उससे बचाव का जो भी कर सकते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए हमारा। सत्येंद्र जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत सारे मुद्दों पे क्लैरिटी देने के लिए। उम्मीद यही है कि दिल्ली में जो अभी दिखाई पड़ रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड वो कंटिन्यू रहेगा और बहुत जल्दी दिल्ली में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़े खुलेंगे और लोग ध्यानपूर्वक उस बाहर निकल पाएंगे। थोड़ा बहुत सामान्य normalcy will come back post, if we are careful, if we can wear our mask, and of course the vaccination can be ramped up. Thank you so much, Satyendra Jain, for speaking to us. That's all the time that we have in this edition of 6 PM Prime. News and updates continue on India Today.